Good morning. My name is Saurabh Meena. It's been some time I've not been able to make videos. I've even got many emails. So finally, I'll be trying to answer some of those queries. And I'm sorry because I got caught up in different work. I was busy in other commitments, and also we had to do the I got Karmyogi trainings. It's a very good initiative by government, and if you guys want, uh, you guys can also train yourselves over there. It's a very good platform that should have come up long back, but it's a good initiative in the right direction by the government of India. Very good opportunity for everyone eager to learn out there. So I've got a few mails. I'll be trying to answer uh, some of them, and the first mail is by some person. That person has got posting at IASR Indore for the post of ICR assistant. I'm currently working in CBDT Mumbai on the post of tax assistant. So first of all, congratulations. It's my institute. Yes, definitely you should join ICAR. See, tax assistant is not a very senior position. It's a quite lower position, and I think ICR assistant is a level 6. It's a better position than tax assistant. So my suggestion is that you should definitely join ICAR. It doesn't matter. It's not non-governmental. ICR is an autonomous organization which is central government funded. So we follow all the rules of the OPT. And see, and I'm currently in the government department, so we have all the benefits जो central government को रहता है, because we we are fully funded by the central government of India. सो ऑटोनॉमस है कि कुछ एडिशनली दे कैन सेट देयर ओन द टर्म्स कंडीशंस. ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा होती है. सो दिस इज माय सजेशन दैट यू शुड जॉइन ICAR. सेकेंड मेल ये बहुत पहले आया था. आई वॉज नॉट एबल टू आंसर. इन्होंने ICAR के एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है सितंबर में, एंड इससे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे. आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट माई प्रीवियस ऑफिस इज नॉट गिविंग लीव एनकैशमेंट. They are saying, as per the Rule 39D of CCS rules, permanent absorption in autonomous body refers to deputation, not new joining. What should I do, sir? So, इनका केस जनरली टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद का है. मैंने इन माई अर्ली वीडियोज आई हैव डिस्कस्ड दैट टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं, सो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑटोनॉमस में जाते हैं, सो यू हैव दैट ऑप्शन बेनिफिट ऑफ लीव एनकैशमेंट. सो उनके डिपार्टमेंट, ही इज़ क्लेमिंग दैट द डिपार्टमेंट हैज़ डिनाइड लीव एनकैशमेंट, सेइंग दैट जो रूल में 39D और CCS रूल्स है वो वो डेपुटेशन के लिए है, न्यू जॉइनिंग के लिए नहीं है. सो मैंने एक्चुअली ये देखा रूल 39D ऑफ CCS रूल्स, एंड इसमें क्लियरली लिखा हुआ है अगर परमानेंट एब्जॉर्प्शन होता है PAC ऑटोनॉमस बॉडी में तो कैश इक्विवेलेंट का प्रोविजन है. एंड ये क्लियरली लिखा है द टर्म the expression permanent absorption used in Rule 39D shall mean the appointment of a government servant in a public sector undertaking or an autonomous body for which he had applied through proper channel and resigned from the government service to take up that appointment. So इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं उसके रेफरेंस में क्लियर है. सो आई थिंक व्हाट जो आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है दैट इज़ नॉट ट्रू. सो यू कैन कोट जो मैंने इसमें दिखाया है, आप इसको कोट कर सकते हैं जवाब में. Another mail, some UPSC aspirant, Ministry of Defense में. Hello sir, I have given prelims twice but I did not clear. What should I do? Prepare or focus on job? दोनों बार missed prelims very close. Can you help me what to do? Some tips on prelims paper. See, prelims is very dicey. It's not easy. I've given prelims multiple times, and it's you are again in a very difficult situation where you are working in a demanding job, and then you have to prepare also. But you have to prepare. You should not give up, because ऐसा मौका कई लोगों के पास नहीं है. आपके पास मौका है तो you should definitely prepare and give the exam. Some tips I can give. Some of them, first of all, you focus on your basics and static portions. सर आप बेसिक्स आप इतना स्ट्रॉन्ग करिए. मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना, इसी में यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स. एंड CSAT भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. CSAT इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2. एंड थर्ड वन इज़, जितने आपने यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं जनरली प्रीलिम से पहले आते हैं कि
ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा करंट अफेयर्स का, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, कुछ ना कुछ लोग वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब में. डोंट फॉल फॉर सच ट्रैप्स. ऐसा कुछ नहीं होता. यूपीएससी को कोई कभी भी पहले वो नहीं कर पाया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे. हमेशा हर बार यूपीएससी गूगली बाउंसर देगा. जिन लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा दे विल हैव एन एज. एंड द ओनली वे टू एस्टिमेट कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इज बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो. एक कहावत है, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में व्हेन आई वाज वर्किंग आई लर्नड इट ओवर देयर, कि पीछे देख आगे चल. सो ये आपको करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना है एंड उसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा. सो अगर आपके वो थीम स्ट्रांग होंगे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस सब्जेक्ट के ये वाले थीम से क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं और ज़्यादातर इस पे फोकस है और आपने वही प्रिपेयर किया है, सो फिर वही थीम के ऊपर कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैम. सो आई विल ट्राई टू कवर सच वीडियोस. होपफुली इन फ्यूचर आई विल बी मेकिंग सच वीडियोस ऑन आइडेंटिफाइंग सच थीम्स एंड उनके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर सकते हैं अपन. इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स. अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए, आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, लेकिन अगर 4-5 सही कर दिए, एक्स्ट्रा आपने कर दिए, उससे आपका है ना, जो कई लोग जो पॉइंट्स में रह जाते हैं या 1-2 मार्क्स रह जाते हैं, वैसा सिचुएशन नहीं होगा. यू विल बी क्लियरिंग द बाउंड्री. सो आई थिंक वी कैन गो ahead in that direction. I request you guys to please subscribe and support the channel. See, and there are other queries as well. I will be making those in the next videos. So अगर और भी आपकी कोई queries हैं, you can send it to my mail ID. It's written over here. We can discuss those queries on this platform so that other like-minded individuals can also benefit from them. That's all for today. Thank you very much. God bless us all.